what will be the compound interest for 2 years on 8,000 at same rate of interest ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 100% 8 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ 100 ਬਟਾ 8 ਕਿੰਨਾ 12.5% 12.5% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ 1/8 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8000 ਰੁਪਇਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ मतलब 8 तो कितना होगा 8 तो कितना होगा 4 तो कितना होगा 4 तो कितना होगा 81 कितना हो गया 4 की वैल्यू कितनी है 8000 क्योंकि अपना क्या होता है प्रिंसिपल होता है आ क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एक की वैल्यू क्या होगी 8000 बटा 64 तक 8 8 64 हो गया एनु कटांगे तो 125 आ कितना दूगा 125 125 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 17 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 17 ਤੱਕ 80 ਕੈਰੀ 8 34 ਤੱਕ 42 ਕੈਰੀ 4 2125 ਯੈਸ ਆ ਮੇਰੇ क्वेश्चन ਦਾ 2 years in 2 years at a certain rate of interest per annum compounded annually. Find the rate of interest. Simple रेशो में ये 5 के बच्चे जब कितना हुआ 2025 ये होगा 2205 आया होगा रण बटा में 4 पर होगा ये आज 447 आज पावर 2 साल है ताकि बनूंगा थे बीटा स्क्वायर 21 स्क्वायर तीन आज को 20 तो 21 और 1 का बात रहा 20 के बाद रहा गुना कितने परसेंट बात रहा 5% दोनों से कर दिया था सर The principal of 6,000 the principal of 6,000 amounts rupees 7986 in 3 years at compound interest find rate of interest ये आपको कितना हो गया 7986 7986 कितने टेबल से कटा 6 टेबल से 1000 आ गया 1300 डिफरेंस के भी साल का 3 ईयर का था सर क्यूब क्यूब बनाना है 10 का क्यूब आ गया 11 का क्यूब आ गया 10 का कोई नंबर 11 और कितना बन रहा है इन्हें 10 के गुना तक कितना जुआ 10% पर है बस रेशो बना दिया इसको जो कुछ नहीं करना in how many years will the sum of rupees 10,000
बिकम 1331 13310 at 10% compound interest per annum compounded annually. देखो इंग्लिश भी या तो ऑप्शन ना कर लिया करो या रेशो बना करो। रेशो बना कितना होगा इन्ना से 10000 तो 10000 तो 13300 जीरो ना जीरो भी एक कितना 10 का क्यूब बन गया। एक कितना बन गया 11 10 तो 11 हो रहा है 10 तो 11 हो रहा है कितना बच रहा है 1 बटा 10 गुना 100 ता 10% ही है ना अपन ਨੂੰ 10% ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ 3 साल आई कोशिश ठीक है सिंपल है कोशिश a loan of rupees 36410 36410 is to be repaid in 3 equal installments at 10% compound interest per annum. Find the value of each installment. एक्चुअली दिया क्यों होगा 10 10 स्क्वायर पे 10 10 क्यूब पे आई ये है कि अपने को 1000 तो 1370 ये 100 तो 150 ये 10 तो 13 करती है सेम बनाना कितना गुना करूंगा कितना करूंगा 11 ना 100 1210 आ गया 1100 आ गया 1000 टोटल कितना हो गया 3310 आ गया आगे कितना है 1331 टोटल करने कल्ली इंस्टॉलमेंट है का अपन कितना पैसा जिताना है 3641 331 की वैल्यू ठीक है एक की वैल्यू क्या होगी 11 सर 11 है 11 331 ਨਾਲ डिवाइड कितना कितना हुआ है 11 के पीछे 110 एक की वैल्यू कितनी होगी 100 आई कितना से आप उधर भी कितना सर 110 नहीं 11 आएंगे सर 3 पीछे नीचे जीरो भी है ना एक डिवाइड में 3310 है अच्छा अगर जीरो है हाँ जी सर जीरो ना जीरो चलेगी फिर 11 रहेगा कितना रहेगा 11 ठीक है कल्ली इंस्टॉलमेंट किਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 1331 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 11 ਨਾਲ 1 4 6 4 14641 रुपए पर इंस्टॉलमेंट आती है क्वेश्चन दोबारा दसना कीगा सी जीरो भी इंस्टॉल रुपीज 9960
9960 was borrow at 7.5% per annum compound interest, 7.5% per annum compound interest and paid back in two equal installments. Find the amount of each installment. इतनी शो भी यस सर ते इतनी शो भी अपने को नहीं प्रपोर्शन दे अकॉर्डिंग की है 9960 एक दी वैल्यू 10 यस सर 3 आ गई ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5547 5547 ਸਿੰਪਲ ਹੈ of rupees 10,000 from a bank at a simple interest rate of 10% per annum. She decide to repay the loan in 5 equal installments each year. This annual installment is question mark. रेट कितनी देती है 10% टाइम कितना देता है एक नॉर्मल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ 10000 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ 5 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 15000 ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ यस सर 100 ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ 100 ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ 100 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ % ਵਿਆਜ ਸੀ 10 ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹੀ ਜੋੜਨਾ 110 ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੀ 120 ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੀ 130 ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਕੀ ਸੀ 140 पहले साल हमेशा की लेना है 100 बाकी साल जिन्ने % इंटरेस्ट है उन्ना जोड़ देना बस आही डायरेक्ट का दस तो कितना बन गया टोटल करके 600 बन गया कितना बन गया 600 होना 600 पता कितने बराबर है 1500 1 12 25 600 कितने बराबर है 15000 के बराबर है 600 बराबर 15000 कर लो तो एक दी वैल्यू क्या होगी 15000 बटा 600 कटूंगा तो कितना आ जाएगा 25000 कितना आ जाएगा मैं क्या क्या हर एक किस्त कितने दी होगी हर एक किस्त कितने दी लेके चलनी आपा 100 दिया 100 गुना 25 कितना आ गया 2500 रुपए की हर एक किस्त होगी मतलब जो किस्ता च पैसा पे करूंगा 2500 गुना 5 12500 ही पे करूंगा ये इंटरेस्ट घट जू क्योंकि उन्हें पैसे पे करता है ये सम रुपीस P T goes borrow and paid back in two equal
into equal yearly installments. Yearly installments, each of rupees 35280. 35280. If rate of interest was 5% per annum and compounded annually, then find the value of P. इंस्टॉलमेंट कितने कितने सी 35280 35,280 दी सी Yes. एंड फ्रैक्शन 20 ਤੋਂ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 400 ਤੋਂ 400 ਆਈ ਸੀਗਾ Yes. ਦੋ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਵੀ 21 ਆ ਗਿਆ 420 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 400 Yes. ਟੋਟਲ 820 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਆ कितनी वैल्यू करनी है 820 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ 448 3528 ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਸੀ Yes. ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 8 ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 8 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ 90% ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਗਾ अच्छा 820 ਨੂੰ 80 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 0 0 16 ਤੇ ਨਾਲ 10 ਆਈ ਹੈ Yes. 600 6560 हाँ जी ईच इंस्टॉलमेंट आ गया उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स का टोटल लिया था उन्होंने ईच इंस्टॉलमेंट आ हर एक इंस्टॉलमेंट है जी कहाँ कर बट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge a debt of rupees 5664 in 4 years at 12% simple interest. उन्होंने आख्या डेप्ट पे करना है उधार पे करना है या तो प्रिंसिपल कहते हैं या कहते हैं उधार पे करना है ऐसे उधार पे किया गया सीगा तो ये अमाउंट आ किया गया अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% 12 बटा कटूंगा तो कितना दूंगा 13 बटा 25 कितने साल है 4 साल है सिंपल सी कंपाउंड सी सिंपल सी तो फिर हमें लिखता अपना 100 तो किन 100 होगा 112 हो जाएगा 124 हो जाएगा 148 टोटल करके कितना है 472 ये बराबर है 5500 एक की वैल्यू क्या होगी 472 कट्टा कितना आ गया 12 आ गया तो 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ will a sum of money become 7/6 of itself at the rate 25% per annum simple interest 25% per annum simple interest भाई प्रिंसिपल की लेके चलांगे
प्रिंसिपल की लेके चलांगे, अमाउंट की लेके चलांगे, इंटरेस्ट की ना लेके चलांगे। यस आई गल है 7/6 होना मतलब है जेड़ा प्रिंसिपल है वो डिवाइड वाला लेके चल पने या उनका कुछ मल्टीपल लेके चल पने लैन 100 भी लिख रहे पर 100 नाल के वो पॉइंट जान लग गया नंबर 100 ता नहीं देता। ठीक है 6 ले लो 6 का कुछ मल्टीपल ले लो 600 ले लो 700 ले लो कुछ भी ले लो 6 का मल्टीपल थले 6 का मल्टीपल ऊपर 7 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है मैं कितना प्रिंसिपल 6 मान लिया अमाउंट कितनी मान ली 7 इंटरेस्ट के होगा दोनों का डिफरेंस एक होगा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी सी 25 कितनी सी 25%। अब करना टाइम करना सी तब एसआई का फार्मूला किसी का P into R into T बटा 100 1 बराबर 6 गुना R अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 25 ਹੈ R 25 ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟਾ ਕੀ ਹੈ 100 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਕੱਟੂਗਾ 3 ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 टाइम क्या होगा इधर 3/2 इधर क्या होगा 2/3 ईयर ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 2/3 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ सर मेरा कॉन्सेप्ट मैं लेट करके किया सी प्रिंसिपल ਨੂੰ 6p मैं भी सर 600 700 मेरा भी नहीं आया 4 ईयर आ रहा है 6p ਕਿਵੇਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ मतलब at what time will the simple interest of rupees 8 rupees लिखो on rupees 8750 become 6/25 of the principal at an annual rate of 8%. At an annual rate of 8%. कितने बरते बाकी और कितने बरते 8750 बोलो एक एक की कॉपी देखा 6/25 सर होता सर हाँ 6/25 होता ही तो रहेगा फिर ही सिंपल इंटरेस्ट के लिए बर्तन की लोड़ी क्यों बिना सर तो कुछ सर प्रिंसिपल 25 लेके चलो इंटरेस्ट 6 लेके चलो प्रिंसिपल कितना लेके चलना है 25 लेके चलना है इंटरेस्ट कितना लेके चलना है 6 लेके चलना है एसआई बराबर सर वो तो अमाउंट सर फिर Yes, sir. समझ नहीं आया ये अमाउंट है अमाउंट भी पिछले क्वेश्चन में अमाउंट माना था इंटरेस्ट एक गल दसो जो अमाउंट एक गल सुनो अमाउंट की गल करूंगा 25 तो बाद होगी घट होगी सर वही तो है ना ज़्यादा होएगा और इंटरेस्ट है इसलिए अमाउंट किया गया सी सिंपल इंटरेस्ट किया अच्छा गया सर फिर ऐड करेंगे वो अमाउंट बन जाएगी अमाउंट बनानी नहीं क्यों बनानी है पिछले च ਆਪਾਂ डिफरेंस ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਐਸਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P ਗੁਣਾ R ਗੁਣਾ T ਬਟਾ 100 ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨੇ 6 प्रिंसिपल 25 रेट 8 गुना T बटा कटूंगा कितना आ गया 4 आ गया आ कटूंगा 2 आ गया आ 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6/2 कितना आ गया तीन ही आ से जो 8750 ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ नहीं ਕੀ ਆ ਗਿਆ कैलकुलेशन गलत हो गई मेरी ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ